السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف بلا خوف کارروائی آگے بڑھانے کا اعادہ کیا ہے۔ نگراں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے نیب میں ترامیم کے بارے میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ تحفظ خوراک کے لیے اسلامی تنظیم نے پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات کی مکمل معاونت کا اعادہ کیا ہے۔ نگراں وزیر ریلوے نے پورے ریلوے نیٹ ورک کو آن لائن فیول مینجمنٹ سسٹم پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مختلف شعبوں میں اپنی شراکت داری بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آج جمہوریت کا عالمی دن منایا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت پسند جماعتوں نے بھارتی فوجوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا، خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے انتھک مہم چلانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم چاروں صوبوں کے تعاون سے ایک مربوط انداز میں آگے بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ چند روز میں اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے صوبائی چیف سیکرٹریوں اور آئی جی پولیس کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں تیزی کا بھی ذکر کیا اور بعض علاقوں میں خفیہ ادارے کی مداخلت کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے بہتر نظم و نسق سے متعلق چیلنجز سے بخوبی نمٹنے کے لیے سول اداروں کی کارکردگی بتدریج بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا ہے کہ بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے سلسلے میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ، بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا خوف و خطر کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ ہم نے آلریڈی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کاروائیوں کو سنکرونائز کر کے یکجا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس ایک ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے قیمتوں پر ضابطے کے حوالے سے کمیٹیوں کی بحالی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی صوبائی حکومت کے تعاون سے کوششوں کی نگرانی کریں گے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں افغان پناہ گزینوں کے ملوث ہونے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کی گئی ہے اور اسے جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا کیونکہ انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاک افغان ٹرانزٹ تجارت کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی ہے اور اشیاء کی اسمگلنگ کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی مسلسل جاری رہے گی اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि हम स्मगलरों और दहशत गर्दों के दरमियान रवाबित ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। एक सवाल के जवाब में इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं और अब मईशत बहुत बेहतर हो गई है। वो निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ीर इत्तलात व नशियात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। मौजूदा माशी सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सार्फिन के लिए कीमतों के अशारिये में खातिर खा कमी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि हम मुश्किल हालात से निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि पैदावारी शोबे में भी बेहतरी रिकॉर्ड हुई है, जबकि खिदमात का शोबा मुतहर्रिक है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि इमदादी इदारों से मुशावरत जारी है और हमें मामूल के मुताबिक जारी होने वाले फ़ंड्स के साथ साथ कुछ शोबों में फ़ौरी फ़ंड्स मिलने की भी उम्मीद है। उनका कहना था कि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की सूरत हाल भी बेहतर हो रही है, जबकि मुल्की ज़खायर अब मुस्तहकम है। मज़ीद कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम ने भी डॉलर की पोजीशन मुस्तहकम करने में मदद की है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए बिजली और तवानाई के वज़ीर मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के अहम नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी और हम इसमें तेज़ी लाएंगे और दायरा कार बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तब्दीली के लिए जामे मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी तब्दील किया जाएगा ताकि उनके नज़्म व नस्क और इस्तेदाद को बेहतर बनाया जाए। मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली चोरी पर नज़र रखने और सार्फिन पर बिजली के बिलों में इजाफे का बोझ कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली के शोबे का कुल गर्दशी कर्जा 2500 अरब रुपए, जबकि गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा 2900 अरब रुपए है। मजीद कहा कि हम इस बड़े गर्दशी कर्जे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत मौसम सरमा में गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 10 बरस में इस शोबे की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम की निगरानी के लिए पावर डिवीज़न में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया है। एक सवाल के जवाब में इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरज़्म है। एक सवाल के जवाब में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत कौमी एहतसाब ब्यूरो के कवानीन में तारामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रही है। उनका कहना था कि वज़ारत कानून और कानूनी माहिरीन तफसीली फैसले का जायज़ा लेंगे और फिर इनकी राय की रोशनी में मुस्तक़बिल का लाएअमल तय किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल के एक ट्वीट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ 5193 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान 560 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से बिजली चोरों के खात्मे का ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल हो गया है। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल से। लश्कर तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल्स में 304 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIRs के लिए मुतलका थानों में दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं, जिनमें से 149 FIRs दर्ज हो गई हैं। तर्जमान ने कहा कि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं और इनमें से 7 लाख यूनिट्स का डिटेक्शन बिल वसूल किया गया है, जिसकी रकम 3 करोड़ रुपए से जायद है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़े ज़रई और कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी तंजीम के एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल यालन बैदौलत की क़यादत में आज इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ़द ने पाकिस्तान में ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम उठाए गए इक़दामात का खैर मक़दम किया और इस ज़िम्न में मुकम्मल मावनत का इयादा किया। निजगारी के निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने उन्हें नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि निजकारी के निगरान वज़ीर इक़्तिसादी बहाली और इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत के नज़रिए को पाया तकमील तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वज़ीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज ईवान सदर इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान उनसे हल्फ लिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तारकीन वतन पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र को कानूनी बनाने के लिए 80 अरब रुपए मालियत पर मुश्तमिल तरसीलात ज़र मुराद स्कीम का ऐलान किया है। आज शाम इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए फौरी तौर पर 80 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इस स्कीम की तफसीलात जारी करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत तारकीन वतन पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए $100 या इससे ऊपर के तमाम वाजबात अदा करेगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मजीद कहा कि हुकूमत तरसीलात ज़र को ये सहूलत फ्राहम करने वाले बैंकों को 20 सऊदी रियाल फ्राहम करेगी। इस कैटेगरी की दूसरी स्कीम सोनी धरती के तहत तरसीलात ज़र भेजने वाले इजाफी फ़वाइद के हसूल के लिए अपने पॉइंट्स पर रकूम जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरसीलात ज़र की मार्केटिंग को भी सहूलियात फ्राहम करेगी। उन्होंने कहा कि एक स्कीम कुरानदाजी की भी रखी गई है जो तरसीलात ज़र कानूनी रास्तों से भेजने वालों के लिए होगी। तरसीलात ज़र बैंकों के जरिए अरसाल करने को मदद फ्राहम कराने की यकीन दहानी कराते हुए उन्होंने तारकीन वतन पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो कानूनी रास्ते इख्तियार करके फ़ायदा उठाएं। तवानाई के निगरान वज़ीर मोहम्मद अली ने आज इस्लामाबाद में एशियाई तरक्याती बैंक की नुमाइंदा टीम से मुलाकात की। उन्होंने तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और पाकिस्तान में बैंक के फंड से चलने वाले मनसूबों में पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर ने तवानाई को बेहतर बनाने के लिए बिजली के शोबे में इस्लाहात और इन्हें मौसर बनाने के लिए वसाइल के एहसन तरीके से इस्तेमाल पर भी बातचीत की। मुलाकात में तवानाई के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तरतीब देने की तजवीज़ दी गई। मुलाकात के दौरान बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध रेंजर्स ने कराची के रिवर रोड के इलाके इस्लाम नगर बल्दिया टाउन में 2 गोदामों से 1 अरब रुपए की मालियत की 140 चीनी की बोरियां बरामद की हैं। रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक ज़ख़ीरा करदा चीनी बलूचिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान स्मगल की जानी थी। उधर तर्जुमान ने आवाम से अपील की है कि वह ऐसे अनासर की फौरी तौर पर रेंजर्स की हेल्पलाइन 1101 या व्हाट्सएप नंबर 0347900111 पर कॉल या मुख्तसर पैगाम भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरामी की बाज़ शिकें कलअदम करार दी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुद्दीन और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने आज एक्सपो सेंटर कराची में सिटी प्रॉपर्टी नुमाइश 2023 का इफ्तिताह किया। तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद समीजे से। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी से मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी और हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि निजी शोबे के ताउन से शहरियों की रहायश का मसला हल किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि निजी शोबा कम लागत की रहायशी यूनिट्स की तामीर को तरजीह देगा। बादशाह इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में माफिया की कोई गुंजाइश नहीं और हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कामरान खान तसूरी ने मजीद कहा कि एडिशनल IG को स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की हिदायत की गई है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि मासी में ताल्लुकात में नशे व फरास आने के बावजूद पाकिस्तान और अमेरिका मजबूत शराकतदार हैं। कनेक्टिकट रियासत में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है और अफ्रीकैन इन ताल्लुकात को वुसअत देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन ताल्लुकात को बुलंदियों पर ले जाएंगे। मसूद खान ने कहा कि दोनों ममालिक अमन सलामती के लिए अपने ताल्लुकात में सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक माहौल दोस्त तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तालीम और तजारत और सरमायाकारी में ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में वली तंगी के करीब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों ने वली तंगी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले के दौरान सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक जवान शदीद जख्मी है। फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ने एक बयान में इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अमन और खुशहाली के दुश्मनों की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाती रहेगी। पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई दिफ़ा और आलमी ताउन मज़बूत बनाने के आज़म के साथ अहम संग मील तय करते हुए 2 मुख्तलिफ मकामात पर जंगी मशक़ें की हैं।
پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق چین میں پیپلز لبریشن آرمی کی میزبانی میں شاہین 10 مشترکہ مشقوں میں پاک فضائیہ کے صف اول کے جہازوں J-10C JF-17 جنگی ہوا بازوں ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور تکنیکی زمینی عملے نے شرکت کی، جبکہ مصر میں برائٹ سٹار فضائی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے دستے میں J-10C فائٹر جہازوں کی شمولیت اور عالمی جنگی مشقوں میں شرکت سے مختصر وقت میں فضائیہ نے بے مثال انداز میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول کی جانب سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ تیزی کے ساتھ ان جدید ترین جہازوں کے حصول اور ان کی فعالیت سے پاکستان کے فضائی دفاع کو مزید مستحکم بنانے اور چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں آج جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے فہد شراز احمد کی اس رپورٹ میں۔ اس سال جمہوریت کے عالمی دن کا موضوع ہے آنے والی نسلوں کو بااختیار بنانا اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر خصوصی توجہ دینا۔ جمہوریت میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا کہنا تھا، یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جمہوریت کو مستحکم کرنا اور جمہوری اقدار کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ جمہوریت کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مذاکرات اور گفت و شنید کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے۔ اسپیکر نے کہا کہ سیاسی قیادت کو جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان جمہوریت کا حقیقی عکس ہے اور جمہوریت کو پروان چڑھا کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جمہوریت کی پائیداری، فروغ اور استحکام کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرتا رہے گا۔ جمہوریت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل میں محروم طبقات سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی شمولیت یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمام اہل پاکستانی نہ صرف انتخابی فہرستوں میں شامل ہوں بلکہ انتخابی عمل میں اپنی بلا امتیاز شرکت کو بھی یقینی بنائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ، کشمیر فریڈم فرنٹ اور جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا کہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں معمول بن چکی ہیں، جس دوران فوجی خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو آج پھر جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنیوا میں ایک سیمینار میں مقررین نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کی طرف مبذول کرائی ہے، جو پہلے ہی بھارتی فوج کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ سیمینار میں بین الاقوامی ماہرین انسانی حقوق کے کارکنوں اور ماہرین تعلیم نے اس بات پر زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی نے کشمیری عوام کی زندگی کو خطرناک حد تک متاثر کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے بارہ مولہ، اسلام آباد، کولگام، پلوامہ، رامبن، راجوری، پونچھ، ریاسی اور سانبا اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران متعدد نوجوان گرفتار کر لیے۔ فوجیوں نے گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی پولیس نے آج سری نگر میں ایک صحافی ماجد حیدری کو گرفتار کر لیا۔ یوکرین نے بخمو شہر کے نزدیک اندریوکا کے مشرقی گاؤں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے ایک فوجی اہلکار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مہم کے دوران روس کے متعدد فوجی ہلاک ہوئے اور آلات کو بھی نقصان پہنچا۔ روس نے کئی ماہ کی شدید لڑائی کے بعد گاؤں پر قبضہ کیا تھا۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی فوج نے بحر اسود کے جنوب مغربی حصے میں یوکرین کے 2 بحری ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے ساتھ کم جونگ ان کے دورے کے دوران کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ روسی حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف نے یہ بات ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے، جو ابھی بھی روس میں ہیں، آج مشرقی شہر کوموسومولک امور کی طیارہ ساز فیکٹری کا دورہ کیا، جو مغربی پابندیوں کی زد میں ہے۔
रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के तनाजुर में 150 से जायद रूसी अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। वाशिंगटन में अपनी मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए अमरीकी महकमा खाद्य के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये पाबंदियां इन महकमों पर लगाई गई हैं जो रूसी हथियारों के निज़ाम की पैदावार, मरम्मत और उसकी जंगी सलाहियत में इजाफे में मुलविस हैं। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर 2 अमरीकी असलहा साज कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। बीजिंग में मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग में गुफ्तगू करते हुए चीन की वजारत खारजा की तर्जमान माओ निंग ने कहा कि अमरीका ने चीन की सख्त मुखालफत के बावजूद ताइवान को हथियार फराहम किए हैं जिनसे चीन की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात को संगीन खतरा लायक है। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वे चीन के असूल पर अमल करे और ताइवान को असलहा देना बंद करे, वरना उसे चीन की तरफ से शदीद जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद चीन वो पहला मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में नया सफ़ीर याओ जिंग मुकर्रर किया है। एक बयान में तालिबान ने कहा कि याओ जिंग की तकर्रुरी दीगर मुल्कों के लिए एक इशारा है कि वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कायम करें। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में उसकी पॉलिसी वाज़ेह है और वो इससे मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने के अमल को जारी रखेगा। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है खेलों की खबरें। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के 12वें मैच में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए अब से कुछ देर पहले तक 22 ओवर्स में 94 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 265 रन बनाए। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी मजमूई तैयारी अच्छी है, लेकिन हम अपनी कमज़ोरियों पर काम कर रहे हैं और गलतियों से सीख रहे हैं। श्रीलंका से शिकस्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एशिया कप में बहुत सी गलतियां की हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमारी फील्डिंग बहुत कमज़ोर थी और हमारे मॉडल ओवर्स की बॉलिंग में मसाइल का सामना हुआ। बाबर आजम ने कहा कि शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ दोनों बेहतरीन बॉलर्स हैं, लेकिन वो विकेटें लेने में कामयाब नहीं हुए। आला तालीम की पहली इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप लाहौर में जारी है। इन मुकाबलों का इनेकाद महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड और डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के ताउन से किया। एथलेटिक के मुकाबले पंजाब स्टेडियम, बैडमिंटन और रेसलिंग NPSC जिम्नेशियम हॉल में हुए, जबकि नेशनल हॉकी स्टेडियम पिच 2 खवातीन के हॉकी के मुकाबलों की मेज़बानी कर रहा है। इन मुकाबलों में सूबे के तमाम डिवीज़न के 2000 से ज़्यादा तलबा तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले में मर्द और खवातीन में टॉप पोजीशन हासिल करने वालों में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि वो 3 साल बाद 67वें कौमी हॉकी चैम्पियनशिप मुनक्किद करेगी जो 12 से 23 अक्टूबर अयूब पार्क रावलपिंडी में मुनक्किद होगी। सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन हैदर हुसैन ने मुतल्लिका टीमों को 18 सितंबर तक शिरकत की तस्दीक करने की हिदायत की है। और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। कौमी बचत के मरकजी डायरेक्टरेट ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर तक ताज़ा बॉन्ड्स में 250 अरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया है। कौमी बचत के मरकजी डायरेक्टरेट के एक आला अहदेदार ने APP को बताया कि डायरेक्टरेट ने 16 खरब रुपए के ताज़ा बॉन्ड्स का हदफ हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त डायरेक्टरेट में अदारा जाती इस्लाहात पर काम जारी है और अब नई इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कौमी बचत डायरेक्टरेट इस्लामी मालियाती शोबे में नई जहतों को मुतारिफ कराना चाहता है। मुल्क में रवा माली साल के पहले 2 माह में ट्रैक्टरों की पैदावार में 6.52% इजाफा देखा गया है और इनकी तादाद 6189 यूनिट हो गई है। गुज़िश्ता साल इस अरसे में ये तादाद 5810 यूनिट थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 24 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,753 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 222 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 138 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज MCS बैंक कंपनी के सबसे ज़्यादा 27 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 319 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 176 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 109 में कमी, जबकि 27 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाक सर्विसेज कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 49.98 रुपये का इजाफा, जबकि बाटा पाक के हिस्से की कीमतों में 37.98 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 296 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 297 रुपये 10 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 371 रुपये 47 पैसे और 372 रुपये 12 पैसे। यूरो 319 रुपये 29 पैसे और 319 रुपये 89 पैसे। सऊदी रियाल 89 रुपये
29 पैसे और 89 रुपये 44 पैसे, UAE दिरहम 80 रुपये 97 पैसे और 81 रुपये 12 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपये 99 पैसे और 2 रुपये 2 पैसे। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,11,999 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 80,497 मीट्रिक टन बरामदी और 31,502 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी, और अब आपको हम लिए चलते हैं फ़न की दुनिया में। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की 41वीं सालगिरह आज मनाई गई। फैसलाबाद रेडियो स्टेशन 1982 में आज ही के दिन कायम हुआ था, जिसे 18 सितंबर 2010 में FM 93 में तब्दील कर दिया गया था। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की 41वीं सालगिरह की खुसूसी तकरीब PBC हाउस फैसलाबाद में मुनक़िद हुई। मुमताज़ मुहक्किक, शायर, अदीब डॉक्टर रियाज मजीद इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने स्टाफ और मेहमानों के हमरा रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद ने शहर की तामीर व तरक्की, सनती, तिजारती, अदबी, सकाफती, दीनी, हुकूमती, तफरीही, मौसीकी और खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा किया है। सकाफती मेला लाहौर है, अगले माह लाहौर में मुनक्किद होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर ने आज मेले के इनेकाद के लिए कायम की गई कमेटी के पहले इजलास की सदारत की। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स तामीरात, डिज़ाइन और हेरिटेज सखर के दरमियान एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद सकाफती वर्से को महफूज बनाते हुए आर्ट्स एंड क्राफ्ट को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अरोड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद हुसैन खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा को इस शोबे में इंटर्नशिप दी जाएगी। और अब रुख करते हैं साइंस की दुनिया का। पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम ने इस्लामाबाद में इत्तलात व नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात की और उन्हें अपने आइंदा माह की 5 तारीख को शुरू होने वाले खलाई सफ़र की तैयारियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने उन्हें खलाई सफ़र के लिए रवानगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि नमीरा का सफ़र खला में पाकिस्तान की मौजूदगी की शानदार अलामत है, जो कौम के लिए एक बड़ी कामयाबी है। निगरान वज़ीर ने कहा कि नौजवान नस्ल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर सकती है। साइंसदानों ने घर की अंदरूनी हवा को साफ रखने के लिए बरकी लैंप पर लगाई जाने वाली शेड तैयार की है, जो कमरे में हवा को आलूदगी से साफ करती है। इस शेड को जनूबी कोरिया की एक यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद है, ताहम शुमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, जनूब मशरक़ी सिंध, शुमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत बखर, DI खान और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 23, लाहौर 36, कराची 34, पेशावर 39, कोयटा 36, मुजफ्फराबाद 38, गिलगित 37, स्कर्दू 32, श्रीनगर 33, जम्मू 34, लेह 28, पुलवामा 32, अनंतनाग 31 और शोपियां में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ बिला खौफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का इरादा किया है। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात से मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत आइंदा के लाए अमल के लिए नैब में तरमीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रही है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क अतहर रसूल, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला नसीरुल्लाह नजम, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
ہمیرا رانا، مجاہد خان اور ہماری پوری نیوز ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔